Good evening everybody. My name is Rahul Suri. The agenda of today's video, छोटा वीडियो करेंगे 10 से 15 मिनट का. The idea is this कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं कि ये कैप प्रोसेस क्या है और इस कैप प्रोसेस की सिग्निफिकेंस क्या है, वो आज हम फटाफट डिस्कस करेंगे. द आइडिया इज कि ये वीडियो देखने के बाद शेड्यूल क्या है, प्रोसेस क्या है, लास्ट ईयर क्या प्रोसेस था, इस साल क्या प्रोसेस है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स क्या है, चेंजेस क्या है इस साल के एज अगेंस्ट लास्ट ईयर, एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली कैप प्रोसेस खत्म होने की इमीडिएटली बाद क्या स्टेप्स आपको लेने हैं, वो सब हम आज 10 मिनट की स्क्रिप्ट वीडियो में फटाफट डिस्कस करेंगे. लेट्स गो. दिस इज द एजेंडा. सो व्हाट इज कैप एंड सैप, दोनों चीज अपन डिस्कस करेंगे. एक्सपेक्टेड शेड्यूल क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट. पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट कौन कौन से हैं, कट ऑफ्स क्या होगा, प्रोसेस एंड स्टेप्स क्या होंगे, वो इस साल के चेंजेस क्या है, एंड एग्जैक्टली कैप खत्म होने के एग्जैक्टली बाद क्या क्या स्टेप्स आपको लेने हैं एज स्टूडेंट्स. बट वन थिंग दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड इज, अगर कैप इज वेयर यू आर डिनोटिंग अ लॉट ऑफ योर एनर्जी, इट मींस कि आपको जो परसेंटाइल एक्सपेक्टेड था या जो टारगेट था उससे आप थोड़ा सा नीचे चूक गए. ये तो सच्ची बात है. I am not saying that these IIMs are not worthy of your attention or something like that, but I am saying कि जब आपने CAT दिया होगा, your objective would have been above cap, correct? ये तो आप मानते हैं. But the point is कि 99 परसेंटाइल लाना is not easy. लोगों को क्या लगता है CAT is a easy paper क्योंकि नॉर्मल एप्टीट्यूड ही तो पढ़ा हुआ है, पर एक्चुअली ऐसा नहीं है. What it takes to get 99 percentile is a lot of dedication and long term view, long term preparation, and for that what Unacademy is bringing is very very important. सबसे पहले I want to bring your attention to this 150 plus 99 plus percentilers from Unacademy, 210 plus 98 percentile plus students from Unacademy. Idea क्या है, we have been doing this for a long time. We are doing this, we will keep doing this because of the quality of faculty that we have in Unacademy. So what we have brought to you is CAT Assure. The idea is कि CAT 2025 की प्रिपरेशन के लिए which is 11 months hence, आप आज से तैयारी करें, आप आज से अकेडमी के साथ तैयारी करें. You get for starters 55% off on all subscription, that is first. But with CAT Assure what you get is, if you get into one of the IIMs, we refund even that fee. जो 45% हमने चार्ज किया वो भी रिफंड कर दिया. But खुदा ना खास्ता you don't go to an IIM, you are not able to crack it in that 1 year, 2026 का जो प्रिपरेशन है that is also upon us. तो आप सोचिए हम आपको एटलीस्ट 2 साल का प्रिपरेशन दे रहे हैं for half the price. That in itself is 4 times. That is very well understood. और अगर आपका IIM कन्वर्ट हो गया, we refund you the fees in any ways. So हर तरह से whatever perspective you have, this is a very clear choice for any CATS related subscription anywhere in the market. और उसका जो which you say ना कि the proof is in the pudding, this is the proof. 150 and 210, basically 98 percentile plus 210 लोग. So the idea is simply this कि there is no better avenue to train for CAT in the longer term against Unacademy. And moreover, what we are starting is the CAT Assure batch, AIMers batch on 29th of December. एमर्स बैच का मतलब क्या है, ये बेसिकली उनके लिए जिनको 99 चाहिए. इस बैच में हम आपके लिए क्या करेंगे, ऑब्वियसली ऑल द टॉप एजुकेटर्स एंड नॉट ओनली दीज एजुकेटर्स, एवरीथिंग दैट इज ऑन अकेडमी प्लेटफॉर्म, लाइव क्लासेस एक्सेट्रा, यू हैव एक्सेस टू एवरीथिंग. बट द थिंग दैट वी विल डू इज weekend mock tests and exclusive GDPI sessions. Basically the aim of the aimers batch is कि जो लोग टॉप के लिए एम कर रहे हैं उनको स्टीम लूज नहीं करनी है. The idea is you go and practice every weekend. We will have innumerable number of mocks and PYQs and everything. We will prepare you throughout the year, and जहां पे भी आप स्टीम लूज करेंगे we will be with you. So that is the idea. With all of that said and done, let us refocus on CAP. So what is CAP? कैप का कैसी का मतलब है कंबाइंड एडमिशन प्रोसेस. तो जो बेबी आईएम्स है, सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन आईएम्स, दे आर स्टिल ब्लूमिंग, दे आर स्टिल कमिंग आउट ऑफ देयर कोकून, वो धीरे धीरे अपने आप को एस्टैब्लिश कर रहे हैं. सो दे हैव पूल्ड देयर रिसोर्सेज टू हैव one process where they can all coagulate and do the basically save on resources. So that is called the common admission process. Now IIM Raipur and IIM Sambalpur were part of the CAP process till last year. But from this year onwards they have decided for their individual reasons कि कैप के प्रोसेस की जगह हम SAP करेंगे, which is separate admission process. Now let me be very clear, इस साल IIM बोध गया is the convener of the CAP process. वो हर साल रोटेट होता है, जैसे मेजर जो IIMs हैं वो कैट का पेपर बनाते हैं और रोटेट होता है, वैसा है. बट
in their PDF, in their MBA admission policy that they have come out with, they have written very clearly that CAP के बाद भी we still retain the right to have an extended SAP process. वो जो PDF है, वो जो MBA policy का document है, उसका link मैं description में लगा दूंगा. Please go and read it for once. The idea is this कि there is a CAP process for 8 IIMs this year. Last year 10 IIMs के लिए था, but रायपुर एंड संबलपुर हैव डिसाइडेड टू डू एसएपी. उनका आपको अलग से प्रोसेस करना पड़ेगा. बाकी 8 आईएम का 99% जो काम है वो सीएपी के थ्रू होगा. बट इफ देयर इज एनी चेंज, एनी डिविएशन, द इंडिविजुअल आईएम विल लेट यू नो दिस. ठीक है. सो दिस इज व्हाट कैप इज. एंड वेरी इंपॉर्टेंटली यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड कि शेड्यूल क्या है. तो शेड्यूल लुक्स अ बिट लाइक दिस. बेसिकली वी आर एक्सपेक्टिंग कि जनवरी 20 के आसपास उसका नोटिफिकेशन आएगा. जनवरी 20 से 28 के बीच में you will have there will be a portal for CAP where you will have to log in, you will have to select all the programs, put in a lot of details etc. वो सब जैसे ही वो ओपन होगा I will bring those details to you as well. 28 के आसपास रजिस्ट्रेशन खत्म होगा. तो बेसिकली you will have the last 1/3, the third 1/3 of January to apply for the CAP process. That is it. उसके बाद जो पीआई का इंफॉर्मेशन है कि भैया पीआई स्टार्ट होने वाला, आपको लेटर्स आएंगे, वो सब होगा फरवरी 10 से. February 14th या mid February से we are expecting the interviews and the GDPI, VAT etc. all to start and they will go on till at least March first week. So 3 हफ्ते के आसपास ये पूरा प्रोसेस होगा. एंड जो कॉल्स हैं वो आएंगे मई के फर्स्ट वीक में. तो ये टेंटेटिव शेड्यूल था. नाउ ये जो शेड्यूल है इसके साथ आपको एक और चीज समझनी जरूरी है. कैप में अगर आपने अप्लाई किया डजंट मीन दैट यू आर अप्लाइंग टू ऑल द कॉलेजेस. होता क्या है, ध्यान से सुनिएगा, इट विल टेक जस्ट 1 मिनट. आफ्टर कैट ऑल द आईएम्स हैव योर स्कोर. यू हैव ऑलरेडी अप्लाइड फॉर ऑल द कोर्सेज जब आपने कैट के लिए अप्लाई किया. सो लेट्स से 4 ऑफ द 8 आईएम्स, आईएम बोधगया है, आईएम जम्मू है, त्रिची है, उदयपुर है, दे लाइक योर टोटल वर्क एक्सपीरियंस प्रोफाइल, जो उनका खुद का कट ऑफ क्राइटेरिया है, शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया है, जो कि अवेलेबल है उनकी वेबसाइट पे. यू कैन गो एंड सी. एंड दीज 4 आईएम्स विल हैव योर नेम कि दिस इज द कैंडिडेट दैट आई वांट टू बी पार्ट ऑफ द कैप प्रोसेस. तो वैसा एक लिस्ट वो कैप जो आईएम बोधगया कन्वीनर है उनको सारे आईएम्स भेज देंगे. फिर आईएम बोधगया क्या करेगा, सब कुछ कोलेट करेगा एंड कैप में जितने टोटल नाम आएंगे उन सब का ये जीडीपीआई इंटरव्यू के लिए पूरा प्रोसेस होगा. The idea that I'm trying to communicate is just because you are in the CAP process doesn't mean that you have been shortlisted by or eligible for each of the 8 IIMs. ये बात ध्यान रखनी जरूरी है. This is the biggest point in confusion. पॉइंट ये है कि हो सकता है 8 में से 6 आईएम से आपको शॉर्टलिस्ट किया हो सकता है 2 आईएम से आपने शॉर्टलिस्ट, व्हाटएवर इट इज. बट अगर इन 8 आईएम्स को आप टारगेट कर रहे हैं, कैप इज द प्रोसेस दैट यू हैव टू गो थ्रू. ठीक है. सो दिस इज द, इट इज अ नेसेसरी बट नॉट अ सफिशिएंट कंडीशन. समझ में आई बात? Think about it like this. It is a necessary condition to get into one of these 8 IIMs, but it is not sufficient. The IIM will take a call. और आपका लिस्ट में नाम भी तब आएगा जब IIM ने आपको पहले शॉर्टलिस्ट किया हुआ है. So be very clear. इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए. आपके दिमाग में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए. अगर डाउट है, put it down in the comments. I will try and reply as soon as possible. ठीक है. सो ये हो गया एक्सपेक्टेड शेड्यूल एंड प्रोसेस. द मेन हिंज ऑफ द प्रोसेस मैंने आपको सिखा दिया. अब लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. These are the participating institutes. These are the 8 institutes that are participating this year. Last year Raipur and Sambalpur bhi tha. For their own individual reasons, they have dropped out of CAP. I think the idea is simply that they want to have a little bit more control on the overall process. And धीरे धीरे करके, as these IIMs also mature, धीरे धीरे, not 1 year 2 year, but maybe 3 4 5 years, सारे IIMs का अपना individual process होगा. And that is how it should be. अभी के लिए it is a basically resource optimization exercise. जब तक वो चल रहा है, very good. आगे चल के over the next 5 to 10 years, I think each and every IIM, be it second generation, third generation, more or less would have their own process, and that is how it should be also. ठीक है. सो दिस इज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन. रायपुर और संबलपुर के लिए आपको अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा. दे विल हैव देयर ओन प्रोसेस व्हिच आई हैव कॉल्ड SAP, सेपरेट एडमिशन प्रोसेस. ठीक है. एंड आई एम बोधगया की जो नोटिफिकेशन आई है MBA में, उसमें भी दे हैव यूज्ड द सेम वर्ड एंड दैट इज व्हाई आई एम यूजिंग दैट वर्ड. ठीक है. लेट्स बी वेरी क्लियर. नाउ एक्सपेक्टेड कट ऑफ. देखिए, ये लास्ट ईयर के कट ऑफ हैं 2024 के. IIM बोधगया का जिस पीडीएफ की मैं बात कर रहा हूं, जिस नोटिफिकेशन में बात कर रहा हूं, उसमें भी सेम चीजें मेंशन्ड है. सो द आइडिया दैट आई एम ट्राइंग टू कम्युनिकेट इज 94 फॉर जनरल कैटेगरी ओवरऑल,
ईडब्ल्यूएस के लिए 77, एनसीओबीसी के लिए 77, एससी के लिए 60, एसटी के लिए 40 एंड पीडब्ल्यूडी के पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए भी 40. सो दिस इज व्हाट वाज द ओवरऑल कट ऑफ. दिस इज ऑफिशियल डेटा. इट इज मेंशन्ड इन दैट नोटिफिकेशन पीडीएफ दैट आई एम गोइंग टू अटैच और आई एम गोइंग टू गिव द लिंक टू इन द डिस्क्रिप्शन. द आइडिया इज कि इस ये जो मैट्रिक्स है ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ का, इसके हिसाब से आप देख लीजिए कि कैप प्रोसेस इज फॉर यू और नॉट. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड उसके बाद देन यू कैन स्ट्रेटेजाइज इन योर माइंड. अब इंडिविजुअल आईएम्स का जो है अलग अलग क्राइटेरिया है. जैसे कि फॉर एग्जांपल आईएम बोध गया में 30% जो वेटेज है वो आपको दिया है वर्क प्रोफाइल को और एकेडमिक प्रोफाइल को. टोटल 30, उसमें 14 एकेड है और 16 वर्क है. तो कितने कितने मंथ्स पे कितने कितने आपको मार्क्स मिलेंगे ये बहुत क्लियरली उसमें लिखा हुआ है. और कितने कितने आपके, मान लीजिए 60% है आपके 10th और 12th में, सो यू गेट 4 मार्क्स ईच. 60% ग्रेजुएशन में गेट मोर 4 मार्क्स. अगर सीए सीएस इस टाइप का कोई प्रोफेशनल डिग्री की हुई है यू गेट एडिशनल 6 मार्क्स. सो दिस तरह का क्राइटेरिया इज लेड आउट बाय ईच एंड एवरी आईएम सेपरेटली. दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. कॉमन एडमिशन प्रोसेस मींस कि देयर इज वन फनल जहां से सारे कैंडिडेट पास होके जा रहे हैं. बट उसके बाद कौन सा कैंडिडेट किस आईएम में लैंड करेगा दैट विल बी स्पेसिफिकली डिसाइडेड बाय द शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया. सो प्लीज मेक नो मिस्टेक. दैट कैप है ये प्रोसेस. इट डजंट मीन दैट ईच एंड एवरी आईएम विल सिलेक्ट यू इफ एवरीथिंग एल्स बीइंग इक्वल. ऐसा नहीं है. एवरीथिंग एल्स इज नॉट इक्वल. आईएम विशाखापट्टनम का अलग कुछ रुचि हो सकती है, उसके कुछ अलग शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया हो सकते हैं, उदयपुर का अलग हो सकता है, बोध गया का अलग हो सकता है, सब कुछ. सो यू हैव टू गो एंड डाउनलोड द एडमिशन क्राइटेरिया, शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया और द क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया और द सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ ऑल दीज 8 आईएम सेपरेटली. ठीक है. सो वो क्या कर रहे हैं बेसिकली, जो शॉर्टलिस्ट है कि कैप में जो नाम देगा वो 8 के 8 आईएम देंगे, तो देयर विल बी 8 वायर्स इन द प्रोसेस. एंड जब पूरा प्रोसेस हो जाएगा उसके बाद अगेन 8 वायर्स द पीपल हु विल गेट सिलेक्टेड. व्हाट इज कॉमन इज द जीडीपीआई पीआई वैट का जो प्रोसेस है वो कॉमन है. So please understand this very clearly. One process doesn't mean that you are applying equally to all the IIMs. Please make a very clear note of this. इसमें doubt, confusion, ambiguity is not acceptable. ठीक है? Please make this very sure. अगर 1% भी, एक iota भी doubt है, put it down in the comments. I will answer it. ठीक है? Now 2024 versus 2025 दो big changes हैं. एक मैंने पहले indicate कर दिया है कि 2 IIMs have dropped out और opted out of the process. उसका एग्जैक्ट क्या रीजन है मैं स्पेकुलेट नहीं करना चाहता. देयर आर पीपल सेइंग कि फॉर एग्जांपल IIM Raipur wanted a slightly higher cut off and stuff like that. All of that is speculation. I don't know if it is written anywhere. अगर है तो I will correct myself, but I don't think that it is given in black and white somewhere. There could be different reasons. And जैसे कि मैंने कहा, over the next 5, 6, 7 years, each and every IIM will have their own SAP, separated admission process, which is as it should be. This is one of the major difference. Second difference is till last year it was a online process. इस साल से it is an offline process. What they have indicated are these 8 cities: मुंबई, कैलकाटा, हैदराबाद, लखनऊ, बैंगलोर, दिल्ली, गुवाहाटी एंड रायपुर. रायपुर को मैंने रेड में इसलिए रखा है because IIM Raipur has dropped off. So there might be a case where Raipur is not one of the cities. इसलिए मैंने रेड में रखा है. This is the best information I have till date. If there is any change, I will update you either through a video or a short or a comment or something like that. But आज तक की जो information है वो इन 8 cities में होंगी. आइडिया क्या है कि पहले जो जीडीपीआई का प्रोसेस था वो पूरा ऑनलाइन था टिल लास्ट ईयर, बट इस साल से यू विल बी फिजिकली रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट इन वन ऑफ द सिटीज. ऑब्वियसली जब आप कैप के रजिस्ट्रेशन करेंगे जनवरी 20 और 28 के बीच में, यू विल चूज योर सेंटर एंड स्टफ लाइक दैट. यू विल हैव टू ट्रैवल, सो इट विल बी अ स्लाइटली एडिशनल कॉस्ट. बट ट्रस्ट मी, इट इज बेटर टू इंटरव्यू or to meet people or your recruiters or MBA interviews in physical form rather than online. In my view, it is always better, even for the candidate जो recruit कर रहा है, जो interviewee है, उसके लिए तो better है ही है, interviewer के लिए भी better है, सबके लिए better है. ठीक है. So अगर आपको जाने का मौका मिल रहा है, you should be very happy about it. ठीक है. Next, steps after completion cap. देखिए मई में आपका रिजल्ट आ जाएगा, आप जीडीपीआई करेंगे. जीडीपीआई के लिए हम आपको ट्रेनिंग कराएंगे बोथ ऑन द चैनल एंड ऑन द अनअकैडमी ऐप एज वेल. वो सब करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है ये आपको कोई नहीं बताता. एंड दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट. कहने का मतलब क्या है, ये जो पूरा डिटेल है ना, ये मैंने IIM बोध गया का जो मैं आपको MBA एडमिशन पॉलिसी का डॉक्यूमेंट बता रहा हूं वहां से लिया है. इट विल बी मोर और लेस सिमिलर फॉर ऑल द अदर IIMs. सो लेट मी जस्ट वॉक यू थ्रू कि वो क्या क्या रहा है.
आफ्टर द डिक्लेरेशन कैंडिडेट विल बी आस्क्ड टू सबमिट एन ईवाई। बेसिकली एक बार मई में आपका डिक्लेरेशन आ गया, दे विल गिव यू सम टाइम, लेट्स से 5 days 6 days समथिंग, कि भैया आपको ये 6 आयाम है, ये 6 आयाम में आप में से किसको अप्लाई करना है उसका ईवाई डाल दीजिए। ईवाई बेसिकली एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, इट्स लाइक सेइंग कि आई वांट टू कम योर कॉलेज, आई एम बुकिंग माय सीट फॉर $20,000, सिंपल। The candidates who will successfully complete will receive admission offer as per the vacant seat and his or order in the merit list। तो भैया अगर आपका मेरिट लिस्ट में आ रहा है, देयर विल बी शॉर्टलिस्ट 1, शॉर्टलिस्ट 2, शॉर्टलिस्ट 3, तो मई से लेके जून के बीच में ये शॉर्टलिस्ट वाला भयंकर कंफ्यूजन चलता है। सो दिस इज द प्रोसेस दैट द शॉर्टलिस्ट गोज थ्रू, ठीक है। तो आपने ये कर दिया, उसके बाद एडमिशन लेटर आपको मिलेगा जिन जिन का मेरिट लिस्ट में नाम आया और जिन जिन्होंने ईवाई सबमिट किया है। सो जिसने 20,000 रुपए सबमिट किए हैं प्लस मेरिट लिस्ट में फर्स्ट मेरिट लिस्ट सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम था, दे विल गेट एन एडमिशन ऑफर from IIM Bodh Gaya, can accept the offer within the stipulated date. They will give you a timeline by paying an offer acceptance amount of 80,000. So basically to reserve your offer, आपने जब पहला मेरिट लिस्ट में नाम आया, आपने ईवाई भरा 20,000 रुपए का, टोटल आपको सीट अपनी लास्ट में कि हाँ आई एम फाइनल, द फाइनल सीट बुकिंग हैपेंस बाय पेइंग दिस 80 + 20। सो दिस इज द पॉइंट दैट आई वांटेड टू मेक क्लियर कि कैप के इमीडिएटली बाद विद इन द नेक्स्ट लेट्स से 2 weeks 2-3 शॉर्टलिस्ट आएंगी, उस टाइम पे आपको 1 लाख रुपीस का खर्चा करके अपनी ये सीट जो है वो बुक करनी है। एंड दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट विच अ लॉट ऑफ यूट्यूबर्स और एजुकेटर्स डोंट टेल यू, दैट यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड। जब कैट का रिजल्ट आया था उसके बाद भी मैंने एक वीडियो बनाया था कि भाई अब आपका डिसीजन मैट्रिक्स क्या है, ऑप्शंस वर्सेस डिसीजन का मैंने एक वीडियो बनाया था। उसमें मैंने कहा था कि जो लोग भी are targeting MBA in this year, they have to start thinking about the finances। करना ही करना है, कोई आपको ये बात नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूं। ओनली पर्सन हु इज मेकिंग दिस नॉइज एकदम एक के बाद एक कि अपनी फाइनेंसिंग पे पूरी जकड़ बना के रखो। within 6 or 7 8 days of cap you will have to start thinking of depositing money। EY 20,000 रुपए आपको एक हफ्ते में सबमिट करना होगा, फिर 80,000 रुपए और 1-2 हफ्ते में। So within the next 2 to 3 weeks of the cap result you have to take care of the finances। Please be very wary of that, please be very aware of that, have a grip on that। ठीक है, अभी से प्लानिंग चालू करो। जीडीपीआई प्रोसेस में उसको इग्नोर किया तो जीडीपीआई प्रोसेस के बाद आप एकदम अरे मैं क्या करूं, यू विल बी लाइक अ डियर इन हेडलाइट्स। डोंट बी दैट, टेक केयर ऑफ योर फाइनेंसेस फ्रॉम day 1 टुडे इटसेल्फ, ठीक है। नाउ द रेस्ट ऑफ द प्रोसेस इज तो जो ये आपने 1 लाख रुपए सबमिट किया है, दिस विल नॉट गो वेस्ट, इट इज नॉट लाइक अ प्राइवेट स्कूल की बुकिंग अमाउंट है। जो फर्स्ट टर्म की फीस होगी उसके अगेंस्ट एडजस्टेड होगा, बट आपने ये पैसे सबमिट करने के बाद भी यू मेड अप अ माइंड कि नहीं मुझे कैंसिल करना है। इफ यू डू दैट विद इन अ स्टिपुलेटेड डेट देन 1,000 rupees will be deducted as processing charges, बाकी 99,000 will be refunded to you। I am again highlighting that this is specific to IIM Bodh Gaya। IIM अमृतसर का हो सकता है कि ये 20,000 की जगह 15 हो या 25 हो, the numbers might change a little bit, but the ultimate logic is कि जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा within a few days you will have to submit an EOI amount। वो EMI amount के बाद जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसके हिसाब से आपको एडमिशन ऑफर आएगा। To accept that admission offer, you have to submit another 80,000 bucks, total around 1 lakh rupees, and you need to be prepared for that 1 lakh। बट उसके बाद भी विद इन सर्टन अमाउंट, ऐसा नहीं है कि एक दिन पहले सेशन स्टार्ट होने का आपको बताना है, 2 हफ्ते पहले, 4 हफ्ते पहले, व्हाटएवर द स्टिपुलेटेड टाइम, उससे पहले अगर आपने बता दिया तो दे विल रिफंड 99K बट कीप 1K बैक एज अ प्रोसेसिंग चार्ज। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, यू नीड टू बी वेरी श्योर अबाउट दिस, ठीक है। अब द थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज GDPI इज अ डिफिकल्ट प्रोसेस। आपको पता है कितनी कैप की कॉल जाएंगी? वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, तकरीबन 24-25 हजार के आसपास कैप की कॉल जाएंगी। क्यों? क्योंकि जो टोटल सीट्स हैं इन आईएम्स में, इन कैप आईएम्स में, वो तकरीबन 2400 के आसपास है। दे कॉल एटलीस्ट 10x द स्टूडेंट्स बिकॉज दे आर वेरी ऑफ द क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, इस पोजीशन पे आने के बाद भी आपका जो सिलेक्शन का चांस है दैट इज ओनली 1 in 10। समझ में आ रही है? 1 in 10 आर नॉट गुड आउट्स, जितने भी प्रोबेबिलिटी का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ा है। इसीलिए यू नीड टू बी वेरी purposeful with your preparation of GDPI VAT rounds, और उसके लिए what we have brought is this batch। The idea is simple, we combine an academy faculty is more than experienced to take you through this process। This process is not easy, this process is not familiar, this process has a lot of unknowns, और उस सब को चीज को कैटर कौन करेंगे? अन अकेडमी की फैकल्टी। यू कैनॉट गो रॉन्ग बाय गेटिंग दिस सब्सक्रिप्शन एंड ट्रस्टिंग अस विद योर प्रिपरेशन फॉर GDPI। आई प्रॉमिस यू दैट, ठीक है। एंड कल संडे है 29th, कल के लिए ये टेस्ट जरूरी है। क्या टाइमिंग है इसका भैया?
The timing is around 12:30. Yeah, 12:30 p.m. to 5 p.m. के बीच में you can attempt this test. Brilliant scholarships, brilliant rewards on offer to you. The idea is simple. Test yourself. CAT 2025 के लिए या even ZAT के लिए भी just test yourself, enroll for this, and you will see where you stand. Moreover, you will obviously can win a lot of prizes, a lot of goodies, but where you stand is the starting point from where you have to go to your goal. Very important. तो आज के लिए बस इतना ही. I hope this video is helpful. I hope you will have more questions, more confusions. Please put them down in the chat, in the comments. I will answer them to the best of my ability. जैसे जैसे नई डिटेल्स आती जाएंगी, I will keep you updated also. That's a promise. आज के लिए इतना ही. Good night, शुभ रात्रि, शब्बा खैर.